Okay. Hi, Jayant. Welcome to Midgard Times. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm fine. I'm excellent. I'm happy that you agreed to do this interview because I saw Sthal, I think, yesterday or day before yesterday on Z5, and I love that movie. And we will talk about that movie in this interview. But before going into that, I want to ask you, what is your definition of feminism? How would you define it? Uh, I don't know about the definition exactly, but what I showed, what I tried to portray in the film, that is feminism, I think. Yeah. Your movie is the definition. Yeah, yeah. Feminism, jokes apart, like feminism is like giving freedom to the girls, giving freedom to the girls, listen to them, allow them to do what they want in their life, and treating them equal, basically. And look at the women as a human being first, then treat as a mother, sister, daughter, etc. But first treat them as a human being, I think. I think that's a beautiful definition, and I agree with it. You are absolutely right on that front. And so, okay, before we go into the film, I want to ask something about its, I think, promotional material or something. Okay, let's start with the poster first. You have showed the lead character in that bride, that makeup, Hmm. and then on the IMDb, there's a 50-second trailer, and it shows the opening dream sequence, just that. So, Hmm. it's kind of, you're trying to you are taking it, you are hiding very crucial things. You are treating it like a, let's say, for example, a Marvel movie. You are trying to miss, don't, you don't want to give the spoilers. You are very secretive about it. So can you tell me about this choice? Why About, so? about what? About the opening sequence? No, not opening. Why the choice to hide the main thing that the movie is about? Because it's, you are showing that her in the bridal makeup, but she doesn't become a bride, and then that 50-second that teaser, it's actually, it's like kind of a dream sequence. The movie is Yeah. about something else. So I wanted to know why that approach. Uh, that was teaser. You're talking about that dream sequence. It was teaser. In terms of marketing point of view, that sequence, like you're talking about promotional material, so I'm answering in that sense. So that was teaser. Teaser means to tease the audience, basically. So ये था ना कि लाइक इट्स रोल रिवर्सल, इट्स रोल रिवर्सल कि लोग वो देख के आए कि ओ अच्छा ये कुछ उल्टा होने वाला है, फिल्म में कुछ उल्टा है, तो एक टीज करने के लिए था. बट इन इन द फिल्म, इन फिल्म की बात करें तो दैट वाज द चेंज, दैट वाज द चेंज सविता और एनी अदर गर्ल इज dreaming of, basically. That was change, basically. That was a role reversal. I'm not saying कि in future उल्टा हो कि लड़के बैठेंगे और लड़कियां उनको ये करेंगे, ऐसा नहीं. बट इट्स अबाउट बिकॉज द होल the matchmaking tradition is about patriarchy. We judge the women on the basis of color, height, and everything. So that was the, like, the Savita is like इतने कि वो बार बार उसी सर्कल से जाते हुए बहुत यहाँ तक वो उसके जहन में आ चुका है कि अभी वो सपने में भी सोचते कि यार एक दिन मैं चाहती हूँ कि मैं बदला लूं. इट्स लाइक, तो वो that part, that mindset is that dream, basically. So yeah, and in terms of poster, अगर आपको पता होगा, महाराष्ट्र में वो जो लगा शादी के वक्त, उसको मुंडावड़ा बोलते हैं, विदर्भा हम उसको बाशिंग बोलते हैं. तो शादी के वक्त वो लगाते हैं. एंड आई थिंक ऐसा उसमें कुछ था, ये नहीं था कि हमने क्यों छुपाया, बिकॉज इट्स अबाउट अरेंज मैरिज और ये था. एंड हाँ, बट अगर आपने पोस्टर पे नोटिस किया होगा, देयर इज preamble, कॉन्स्टिट्यूशन इन द बैकग्राउंड. सो या, तो वो है मीनिंग कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट
uh, everything what Constitution say. Yeah. Okay, so moving on. So if it becomes very evident from the beginning that this is a movie that's very personal to you, it is quite evident there. So I believe that for a first-time filmmaker who makes a feature film, the more personal he gets, the better the movie becomes because his voice comes out more clearly. So I wanted to ask you, what about this subject means it told you okay, I have to make this film only because what strike means this is a personal movie of course, but there are so many issues you might be worried about, you might want to talk about, but what was that voice inside you that told you okay, no, I first need to tackle this subject, this one, if you can tell me about Yeah. As you said, it's a personal experience. Yeah, because since childhood, I'm observing these all this stuff because I have two sisters and five cousins, and all of them had arranged marriage. So बचपन से ही मैं ये सारा देखते आया हूँ. That whole मैच मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसको मराठी में कहते हैं बैठक, कांदा पोहाचा कार्यक्रम. सो ये और एक्चुअली इस फिल्म की शुरुआत, व्हाई दिस फिल्म, बिकॉज कुछ साल पहले मैं मेरा कजन है, उसकी बैठक में मैं बैठा था. बेसिकली आई वाज देयर. जो फर्स्ट टाइम मैं किसी उस बैठक में बैठा और अमंग द ऑल मेन. और इसके पहले मैंने बैठकें देखी थी, बट क्या होता है ना, जैसे कि आप होता है कि आप छोटे बच्चे होते तो आप यू डोंट क्वेश्चन द ट्रेडिशन, क्योंकि वो बरसों चलता है, आपको लगता है कि सही होगा. लेकिन जब मैं 6-7 पहले की बात है, जब मैं बैठा था तो मुझे जो सारा जो चल रहा था, जो लड़कियों को, उस लड़की को सवाल पूछ रहे थे, हम भी बाहर जाके उसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो मुझे बड़ा खटका पहली बार. लाइक द होल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द गर्ल, वी वर जजिंग द गर्ल. तो मुझे खटका. एंड देन व्हेन आई केम बैक टू मुंबई एंड सो आई थॉट कि let's write something or let's make something on this issue. And I wrote the script. I think I wrote the script in one go, like within a month, like in 2017. But because of some reason, because I was busy with another project, so that got delayed, and finally in 2022 I shot this film. So I think that incident is the seed of this film, basically. Yeah. okay. That's interesting, and actually, I agree with you because when you go into this arranged marriage type of setting and you see that just it goes in something inside you tells you, okay, this doesn't feel actually that right. I mean, why is she being judged like a product and all that? So Right. that's and you showed that beautifully in the film. It hits you quite hard. And of course, the if anybody will talk about Thal, the first movie they will relate it to is The Great Indian Kitchen, of course. Yeah. And of course, you have written the film before that. It was in 2017 only, but that film came later and it broke with No. such it exploded in the India. So I wanted to know if that did that film give you some kind of motivation or something? It was like, okay, I think I am going in the right direction because there's an audience out there for a movie like this. Did it have some effect on your? As I said, I wrote this film Stal before the Great Indian Kitchen came like release. So, but I watched the film. I really like the film. I really like the film. And as you said, I feel inspired, basically. Yeah. Though the core theme is same about of the both of them. The core of film is about patriarchy, and this film also about patriarchy. But yeah, the films are the treatment, the films, the characters are different. So definitely, I felt like inspired and you can say responsible, more responsible towards making this film. Yeah. Okay, great. So, one of the, I think, wonderful things about this movie is the performances. I think they really lift the whole film. And I want to talk about you. I wanted to know how you came across Nandini and especially Tarant, because I think first I want to know about how did you come across Nandini, then we can move on to Tarant first. How did you find them, discover them?
Yeah. So that was a very interesting journey, I think, the finding the actors. So uh, I always wanted to make this film very real, very authentic films, because and that's why I chose to shoot this film in my village, because while writing that same village, same characters where basically I'm writing. So and the dialect that of Marathi in that region, from the Vidarbha region, is different from the Mumbai or Pune region. So to pick that dialect for any actor is difficult. Is difficult. If I would have cast people from Mumbai or Pune, it will have very difficult for them to pick that correct dialect. So मेरी एक जिद थी कि नहीं, कि मैं वही के एक्टर कास्ट करूं बेसिकली, क्योंकि वहाँ के एक्टर से कास्ट करते, उनके लिए वो डायलेक्ट बड़ा नेचुरली आता, और सबसे पहले अगर वहाँ के लोग कास्ट करता तो वो कैरेक्टर रियल लगते, क्योंकि वो उन लोगों ने वो जिंदगी जी है, उन्होंने वो जिंदगी देखी है, उन गांव में, उन गलियों में, उन घरों में से वो गुजरे हैं, तो उन्होंने वो लाइफ जी है। तो इसलिए हमने जब कास्टिंग ऑडिशन शुरू किए वहां पे, तो बहुत सारे, इट्स नॉट ओपन ऑडिशन, आई बेसिकली वी स्टार्टेड ऑडिशनिंग in my college where I shot the film, where some part of the college shot. That I'm the student of that college basically. I studied in that college. तो हमने वहां से शुरुआत की थी, और वहां पे ओपन था कि मुझे इस एज ग्रुप की लड़कियां लड़के चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं, और उसमें नंदिनी भी आई थी। तो मैं, ये थोड़ा आंसर लंबा होगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्या हुआ था कि नंदिनी या तो नंदिनी भी आई थी, और हमने बेसिक ऑडिशन किए। देयर वाज नॉट लाइक टिपिकल ऑडिशन जो हम या इंडस्ट्री में करते। बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ कि कि हाउ कंफर्टेबल दे आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बेसिकली दैट वाज द ओनली यू कैन से टेस्टिंग प्रोसीजर, यू कैन से कितने वो कॉन्फिडेंस है और क्या कर रहे हैं। तो नंदिनी भी आई थी, उसने उसने ऑडिशन दिया बेसिक ये, और कुछ परफॉर्म करके, कुछ भी लोग अपना मन की कुछ तैयार करके आए थे, कुछ परफॉर्म कर रहे थे। ऑडिशन हुआ, दिन भर ऑडिशन चला और हो गया। ऑडिशन होने के बाद नंदिनी मेरे पास आई वापस। उसने कहा कि सर मेरा ऑडिशन ठीक नहीं हुआ, मुझे वापस करना है। तो मैंने बोला कि यार नहीं, कोई बात नहीं, आपने जो ऑडिशन दिया हमारे पास है, और हमको बताएंगे आप अगर आपका होता है। नहीं, मुझे वापस करना है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। तो फिर उसने एक सेल्फी वेल्फी खींची, जो भी है वैसे चले गए। नेक्स्ट डे वी आर ऑडिशनिंग चंद्रपुर, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट प्लेस, दैट इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम वरोरा। सो तो हम वहाँ ऑडिशन चल रहा था, जनरल ऑडिशन। वहाँ आधे घंटे बाद देखता हूँ कि वापस नंदिनी वहां पे स्टेज पे आई उसके लिए। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम्हारा तो ऑडिशन तो हो गया है, तुमने ऑडिशन कल दिया। नहीं सर, वो अच्छा नहीं हुआ था, मुझे वापस देना है। कमाल है, बहुत ही मुझे उसका जो उसकी जो भूख थी, उसका वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार उसको सीरियसली करना है। तो उसने किया, और मच बेटर किया था उसने। बेसिकली जो ऑडिशन वो कुछ प्रिपेयर करके आई थी, कुछ एक मोनोलॉग प्रिपेयर करके आई थी, बहुत अच्छा किया। मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल है, और उसका लुक जो मैं देख रहा हूँ, उसकी हाइट जो है वो वही है। तो फिर मैंने एक फिल्म का एक सीन उसको दिया, उसको कहा कि तुम बाहर जाओ, ये प्रिपेयर करके आओ, और आधे घंटे बाद आ जाओ। वो गई, आधे घंटे में वापस आए, उसका हमने फिर उस सीन के हिसाब से ऑडिशन किया। बहुत कमाल किया उसने। उसने जैसे किया था, मुझे लगा कि नहीं, यही मेरी सविता है, दिस इज माय सविता। तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा एक, क्योंकि वो एक्टर नहीं थी, वो तो ये थे, उसने कभी ट्रेन एक्टर नहीं थी, तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा स्टिफनेस था उसमें, बट मुझे कि इस पे काम कर सकते हैं। और दैट्स हाउ आई फाउंड माय सविता। और उसके बाद बहुत सारे ऑडिशन हुए, लेकिन मेरे दिमाग में नंदिनी बैठ गई थी कि यही सविता है। समहाउ उस दिन जो क्लिक हुआ ना, होता है कभी कभी कि यार एक मैजिक हैपन। तो इस तरह सविता की हुआ। एंड अबाउट दौलत राव, टॉकिंग अबाउट दौलत राव, दौलत राव, तो तारानाथ। तारानाथ उनकी तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग रही। तारानाथ तो मुझे कभी मिल ही नहीं पाए। शूट के 10 दिन तक वी आर ऑडिशनिंग डिफरेंट पीपल, एक्टर्स, नॉन एक्टर्स, बट वो एक था ना, जो आंखों में मुझे वो एक इमोशन या वो एक दर्द चाहिए था, वो कहीं दिख नहीं रहा था। सो
अच्छे एक्टर्स थे, बट समहाउ आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि यही तारानाथ है। जब हम रेकी कर रहे थे, लाइक 10 days शूट, एक दो शॉर्ट करके रखे थे कि हो सकता है कि मैं इनको कास्ट करूं, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि यही मेरे दौलतराव मुझे नहीं लग रहे थे। जब शूट के 10 दिन पहले जब हम मेरी टीम की रेकी कर रहे थे हम उसी गांव में, तो माय कजन संदीप हु प्लेड काड़ी गुरुजी इन द फिल्म, ही इज माय कजन। तो उसको मैंने कहा था कि यार मुझे उस टाइप का कोई बंदा चाहिए, तो वो अपने बाइक पे तारानाथ को लेके आए जस्ट मुझे मिलाने के लिए। हाँ, तो उसने कहा कि यार आप पहचानते हो उनको? मैंने बोला कि दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी उसकी। बोला कि नहीं, अरे ये अपना तारानाथ है, क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे, वो सीनियर है मुझसे, बट लेकिन उसने जिस टाइप से मुझे बात की, कसा है इस मराठी में, तो जो उसकी आवाज थी तो बहुत ही, मतलब कि यार ये तो वही लग रहे। दाढ़ी बड़ी थी, वो इतने ओल्ड नहीं है, बट वो बिकॉज ऑफ दाढ़ी और ये उस टाइप का उसका लुक एंड फील था, तो मतलब यार कमाल लग रहे। और जिस टाइप को उसने बात की तो ये कमाल लग रहा। तो संदीप माय कजन उसने कहा कि देखो कुछ कर सकते हो। बोला कि हाँ ये तो लग रहा है इंटरेस्टिंग। तभी के तभी आई टोल्ड माय one of the AD to go and just record one scene with him, like basic. तो चंदन जो मेरे उन्होंने कास्टिंग की है, हमारे चंदन काफी उसने लोकल कास्टिंग की है। तो वो गए और उसने एक सीन करके लाया, और जब मैंने सीन देखा, लाइन वाइन तो ये हो चुका था, बट द वे ही वाज टॉकिंग, करेक्ट, एकदम जो सुर था ना एक एक्टर का, वो कैरेक्टर का वो करेक्ट सुर था। मतलब कि बस दौलतराव मिल गए। तो ये दो जो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेरी फिल्म के, तो दोनों की कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे वो मिले। आई थिंक लक बोल सकते हैं या जो भी है। नंदिनी की एक जिद थी, जिसके वजह से मैंने उसको कास्ट किया, ऑब्वियसली टैलेंटेड और प्लस जिद, एक पैशन। और दौलत राव बस लकीली एक्सीडेंटली मुझे मिल गए बेसिकली, वो किस्मत में था उनकी भी कि इस फिल्म में होना है। या बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं पहले अपोलोजाइज करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तारानाथ वो गलत प्रोनाउंस किया था नाम उनका, सो नहीं तारानाथ। नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ सर। नहीं, हाँ। सो एक्चुअली आई एग्री विथ यू कि आपने जो कहा कि उनकी आंखों में जो इमोशन की जो आप बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट कम्स वेरी piercingly, if I can say, in that scene where a man comes to Daulat Rao and says कि Sunday arranged marriage के लिए लड़की देखने के लिए आ रहे, जिस दिन उसका एग्जाम रहता है। So then I love how in that scene he doesn't immediately agree. He's like, अच्छा एग्जाम है उसका, क्या हम शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग? He asks, and you can see in his eyes that okay, he feels for the daughter कि okay उसका एग्जाम मिस हो जाएगा, लेकिन कंडीशनिंग उसकी ऐसी करके है कि वो फिर भी वो गिव अप कर देता है कंडीशनिंग में और उसको फ्यूचर एग्जाम नहीं देने देता। तो I think that scene also holds the key to your film, the main core, that you are not actually criticizing the individual, you are criticizing the whole institution that has made individuals like Daulat Rao. So, and I, conditioning, yeah. yeah, uh, so, yeah, so that was, so I love how you brought that out through that scene. I love that performance there. So, I wanted to know कि ये मतलब ये जो सीन जो था आपका, ये आप मतलब जैसे ये इंस्टीट्यूशन को जब आप क्रिटिसाइज करो, तो आपका ये मूवी आपने स्टार्ट कैसे की थी? मतलब आप ये बहुत जब आप और ड्राफ्ट जब लिखते गए, तो आप इसका रिफाइनमेंट के बाद अगर आपको लगा कि ठीक है इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग से ही ऐसे था ये कॉम्प्लेक्सिटी जो एलिमेंट जो है? राइट। सी, जैसे मैंने कल आपने जो लिखा फिल्म के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी चीजें आपने, बहुत ही जो लेयर्स हो सकता है कि बड़ा ऑर्गेनिकली आए, वो आपने आपने पकड़े और आपने समझे कि तभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि ये लिखते वक्त मैं सोचा था क्या, नहीं सोचा था, या कि होता है सीरियसली कि कभी क्या था कि जैसे मैंने कहा कि ये जिंदगी मैंने बहुत पास से देखी, नजदीक से देखी है, तो ये बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस था मेरे लिए। मैं नहीं कहूंगा कि एज अ राइटर आपको सब सोचना पड़ता, बट ये इस मैं खास तौर पे इस फिल्म की बात, सल की बात करूं, तो ये बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिकली आई लिखते वक्त। बहुत ज्यादा सोचना है, हमने बहुत क्राफ्ट भी नहीं किया फिल्म को, नहीं करने की कोशिश, इवन राइटिंग स्टेज पे मैं भी कभी अभी मुझे यकीन होता कि ये सीरियसली मैंने लिखी है।
क्योंकि ये क्योंकि वही होता है कि हम जो बोलते हैं कि 1 महीने में लिखी या जो भी, वो 1 महीना नहीं था, वो आपकी पूरी जिंदगी है। आपने जो चीजें आपने पूरे इतने सालों से आप जी रहे हो, वो आपका तजुर्बा है, वो आपका एक्सपीरियंस है लाइफ का, आपके लाइफ को देखने का दृष्टिकोण है, एक माइंडसेट है, एक परस्पेक्टिव है, वो आपकी राइटिंग में आता है। उसका ऑर्गेनिकली आया क्योंकि आपकी जो पूरी कंडीशनिंग वैसे हुई है, आपने देखी है, इसलिए वो आपके राइटिंग में आया है। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्टली कहूंगा कि मैं इतनी मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत इस पे क्राफ्ट किया, बहुत सोचा, नहीं किया। ये बड़ा ऑर्गेनिक था। इवन जिस सीन की बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये दौलत राव भी, ये कैरेक्टर या सविता या लीलाबाई, ये कहीं ना कहीं जो एक्चुअल कैरेक्टर्स है मेरे आसपास जो मैंने देखी, उन पे बेस है। ऐसा नहीं कि वो क्रिएट किए गए हैं, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आए। तो मुझे पता है, मैंने दौलत राव जैसे लोग देखे हैं मेरे आसपास, मेरे हो सकता है मेरे बहुत जो क्लोज वंस है, मेरे फैमिली है, लीलाबाई है, वो सब में वो कैरेक्टर मैंने देखे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आप कैरेक्टर लिखते वक्त उनका चेहरा या उन आपने जो उनके साथ जो टाइम बिताया है, वो आपको दिमाग में दिखता है। इसलिए आप वो कैरेक्टर, हमें पता है कि वो ऐसे बात करेंगे, वो आपके अंकल हो, आपके फादर हो, या आपके कोई नेबर हो, आपको होता है कि एक इट्स नॉट अ टिपिकल वन पर्सन, इट्स अ मिक्स, इट्स द इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज। बट वो उसी एक होता है कि मुझे पता है कि ऐसे रिएक्ट करेगा। तो ये ऑर्गेनिक था। मैंने बहुत क्राफ्ट नहीं किया क्योंकि ये इस रेप्लिकेशन ऑफ द लाइफ, एक्चुअल लाइफ। सो ये बड़ा ऑर्गेनिक था। और और मैं जो जिस फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी तो टीचर थे, बट हम किसान हैं। तो हमारी घर में खेती है, और हमारा पूरा एग्रीकल्चर बेसिकली फैमिली है, कुनबी समाज बोलते हैं उसको। तो ये जैसे अगर आप कपास का है, कॉटन कॉटन फार्मर, ये बड़ा ऑर्गेनिक, क्योंकि हम द विदर्भा इज लाइक इज अ कॉटन बेल्ट, और हर जितना भी एग्रीकल्चर है, तो लाइक कॉटन होता है। हमारे खेत में भी कॉटन, सोयाबीन होता है। तो ये सारे आप लिखते वक्त आपको पता है कि अगेन शादी मीन्स जस्ट लड़की का नहीं होता, इस शादी इज लाइक बैगेज होता है, उसके साथ सारा, उसके साथ पूरा समाज जुड़ता है। वो सिर्फ आपका पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती आपके घर की, उसके साथ आपका समाज भी आता है, लोग समाज सब आता है। तो ये सारा ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली लिखते वक्त आया बेसिकली। या बेसिकली आप बहुत शार्प ऑब्जर्वेंट राइटर हैं, मतलब देखा जाए तो। यू कैन से, या तो मुझे आपने सवाल पूछा तो मैं भी सोचने में डूब गया कि कैसे उसका जवाब दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता। कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए इस मुझे ये इंटरव्यूज बड़े पसंद है, क्योंकि ऐसे फिर आप ऐसे आंसर सोच सोच के नए नए लेकर आते हो, मुझे भी सोचने का मौका मिल जाता है, तो इसलिए आई एंजॉय डूइंग दिस इंटरव्यूज। नहीं नहीं एग्जैक्टली, मुझे अच्छा लगा कि आपका पढ़ के। और मुझे एक दो इंटरव्यूज भी मैंने, सॉरी इंटरव्यूज, रिव्यूज पढ़े थे बहुत पहले, जो जब हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। मुझे सीरियसली अच्छा लगा जब लोगों को फिल्म समझ में आती है, लोग वो लेयर्स देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं, यू आर गेटिंग दैट। मतलब आई डोंट नो यू नो मराठी कल्चर और नॉट, बट आपने बहुत ही बढ़िया पकड़ा है कुछ चीजों को। Thank you so much. Okay, so moving on, ये this is also, given the seriousness of the subject, ये काफी funny film भी है. It is the humor, it comes very organically. And one of the scenes, which I cracked up laughing because I also thought it was quite subtle, and it was the scene where, wedding function में सब वो खाना दे रहे होते हैं सबको, और लाइट चली जाती है, और लाइट जाते ही उस पर क्या होता है, वो कार आती है, वो इट एक्ट्स एज अ स्ट्रीट लाइट और समथिंग। एंड देन और वो कहते हैं कि देखो जीजा जी की कार भी, मतलब ये द ब्रदर इन लॉज कार इज आल्सो हेल्पिंग है। सो आई फाउंड दैट फनी बिकॉज द जोक्स आर मेड अबाउट दैट ग्रूम की देखो ये बिजली विभाग में तो इसके घर लाइट नहीं जाएगी, ये नहीं होगा। एंड देन इन दैट सीन द कार आल्सो does the kind of a job of that brother-in-law, if you can say that, because it's giving them rights. So this is more like a yes or no question. Was that joke meant to be like this only? Just wanted to know that. Did I catch that scene right? Yeah, the only thing,
उस सीन में अगेन जैसे भी कहा कि वो सीन, लाइट चली जाती है, कार आती है, दैट वाज एक्चुअली हैपेंड। वो बहुत साल पहले, और मेरे एक कजन की रिसेप्शन में हुआ था। और मतलब बाय कोइंसिडेंटली उसी जगह जहां पे वो सीन शूट हुआ है, उसी जगह वो इंसिडेंट हुआ था। और ये इस स्क्रिप्ट में लिखा था मैंने। ऑब्वियसली हमने शूट, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ये फिल्म मैंने अपने गांव में शूट की है, तो जो लोकेशन भी थे मेरे दिमाग में क्लियर थे, कहाँ पे क्या करना है। तो वो हुआ था, तो मेरे लिखते वक्त था। और एक छोटा सा पॉइंट है कि लाइक लोड शेडिंग जो स्मॉल विलेजेस में अभी भी होता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप फंक्शन चल रहा, सडनली बिजली 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 चली गई, बट वो पैशन, वो पैशन बोलते वो जो पूरा सेलिब्रेशन का वो नहीं रुकेगा। वो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो आप टॉर्च जलाओगे, मोबाइल बैटरी जलाओगे। और जो कार की बात कर रहे हो, उसमें जो लाइन है बेसिकली कि जावयाची गाड़ी कार कामात आली, जावया मीन्स ब्रदर इन लॉ। एक्चुअली मैं लिखते वक्त वो एक्चुअली जो उसका हस्बैंड होने वाला, उसकी उसके लिए कार नहीं थी, आपने वो इंटरप्रेट किया, बट वो कार है कि कोई उनके कोई बड़े दामाद होंगे, उनकी है। तो क्या था, छोटे स्मॉल विलेजेस में क्या होता है ना, कि दामाद को बड़ा महत्व मिला। अगर हो सकता है आपकी तरफ भी होता है, हमारी तरफ भी दामाद को बड़ा महत्व दिया जाता है कि अरे दामाद की गाड़ी, दामाद का ये। तो ये वो लाइन मैं बहुत बार आए, तो इसलिए मैंने वो डाली थी वो। लेकिन वो उसके हस्बैंड की कार नहीं थी, वो ना दहेज की कार नहीं थी, वो किसी और की कार थी। हाँ, बट बट जोक लैंड होता है। ओके, और आई गॉट इट रॉन्ग, लेकिन जो ब्रांड होता है, हाँ। हाँ, और वो अच्छा अगेन कि बिजली जाने के बाद ही वो बोलते कि रंजू अपने हस्बैंड को बताओ। वो है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो लाइटमैन है, तो वो बहुत ही आपने भी पकड़ा, और बहुत लोगों की भी बहुत हंसते। एक्चुअली मैंने अभी ओटीटी पे तो आप बड़े इस सब बड़ी इंटीमेट स्क्रीनिंग होती है, बट मैंने जब स्क्रीनिंग सिनेमा हॉल में, थिएटर में जो कम्युनिटी व्यूइंग होती है, तो हर बोल तो मुझे पता था कि इस लाइन पे लाफ्टर आएगा, हर लाइन पे लाफ्टर आ रही थी बेसिकली। तो मैंने इतने स्क्रीनिंग अटेंड किए सिंस टोरंटो टू अब तक, जितने भी फेस्टिवल हो या फिर जब थिएटर का रिलीज हुई थी, तो जहां जहां लगता है कि लोग हंसेंगे, लोग हंस रहे थे। तो वो जोक्स लैंड हो रहे थे। तो मैं तो दंग रह गया था इन टोरंटो, इन कनाडा। देयर वर लाइक इंटरनेशनल ऑडियंस, by reading subtitle they were laughing basically। थोड़ा, पर तो उनको सबटाइटल्स में भी वो ह्यूमर लैंड हो रहा था। ऑब्वियसली कुछ कुछ जगह पे जो बड़ी स्पेसिफिक होता है वो नहीं होता, बट लोग सब करेक्ट, मुझे लगा कि अभी लाफ्टर आएगा, आ रहा है एकदम। और आपने कहा कि ह्यूमर, क्योंकि मैं जो आपके दिल में सवाल था वो बता रहा हूँ कि ह्यूमर है कि वो अगेन वो ह्यूमर कम वेरी नेचुरल टू मी बेसिकली। मैं हो सकता है कि मैं रियल लाइफ में बहुत ही खुश मिजाज का थोड़ा सा इंसान हूँ। मैं बहुत ही हंसी मजाक करता रहता हूँ। मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता जिंदगी को। दो माई फिल्म इज अबाउट टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस सब्जेक्ट, बट मेरा एक पर्सनल है कि मैं अगर कोई भी सोशल पॉलिटिकल कोई भी सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, इसके पहले भी जो मैंने लिखा है, कि मैं उसको एक ब्लैक ह्यूमर कह सकते हो आप, उसमें डालने की कोशिश करो। आई ट्राई टू फाइंड ह्यूमर इन एवरी सिचुएशन बेसिकली, एवरी मंडेन सिचुएशन। तो बड़ा वो, और वो सारा फोर्स ह्यूमर नहीं होता, वो एवरीडे लाइफ का ह्यूमर होता है, जो हम आपस में बात करते कितने बार हंसते हैं। अगर आप दोस्तों से बात करते हैं, ये होता है, तो वही मैं कोशिश करता हूँ कि वो आ जाए। देयर इज नो कि अभी मुझे फिल्म में ह्यूमर डालना है या आप एक पंच लाइन देना है या कुछ, वो सोच के नहीं। हाँ, वो बड़ा ही जैसे कैरेक्टर है, जैसे कैरेक्टर बात करते हैं, उससे ही मैं ह्यूमर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो फिल्म में भी वही है। हार्डली देर आर ऐसे कोई ह्यूमर है कि मैंने फोर्सफुली डाला हो। कोई भी नहीं है, आई थिंक। या बेसिकली मैं जिंदगी देखता हूँ ऐसे बेसिकली। हाँ, तो अगेन इट इज कम वेरी नेचुरल टू मी बेसिकली। Glad you talked about the black humor, क्योंकि ये एक सीन है जिसमें मुझे लगा इट वाज अ नाइस मिक्सचर ऑफ ब्लैक ह्यूमर एंड काफी रियल पेनफुल एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड दैट सीन इज द वन जहाँ वो स्टेट लेवल कंपटीशन होता है, वेडिंग मैच वाला, वहां जाके
men and women go to the stage and they are like मेरा नाम ये है. It's not competition, it's basically एक ये होता है, हम इसको मराठी में कहते हैं कि वधू वर परिचय मेळावा, मीन्स लाइक जो होते हैं लड़का लड़की उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, होता है बेसिकली, इट्स लाइक कम्युनिटी वेडिंग प्रोग्राम होता है, इसमें कॉम्पिटिशन. या प्लीज. Yeah, so no, I just wanted to say that कि उसमें वो मुझे अच्छा लगता है वो. It's kind of funny, मतलब देखो क्या हो रहा है, मतलब क्या जाके ही अपने आप को ऐसे, मतलब they are presenting themselves as a candidate for some interviewer or some boss or something, and at the same time it feels so humiliating, मतलब उसको देख के एकदम कैसा लगता है, oh, what is this happening. So this was quite something new for me, क्योंकि मैंने मतलब ऐसे फंक्शन देखा है जहाँ लोग मिलके शादी करते हैं एक साथ, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं एक साथ, समूह विवाह होता है. बट इट दिस वाज, आई थिंक मैंने पहली बार ऐसा कोई फंक्शन देखा था. सो आई वाज लाइक ओके वाओ, लोग मतलब इतना मतलब ह्यूमिलिएट होने को रेडी है कि ऐसे ये सब ऑर्गेनाइजेशन थे. सो इट वाज समथिंग लाइक a new to me. So just wanted to tell you that. And let's see. So moving on, before this is my second interview, and before, if you can't tell me, I'm acting like a little amateur if my boss is not giving it away. But this is my second interview, and before you, I talked to Ram Reddy, who made Jugnuma, which is my favorite movie of the year. So Ram told me, because he has experience of working with first time actors, non actors, एंड व्हाट ही टोल्ड मी दैट कि उनके साथ अगर नॉन एक्टर्स के साथ काम करो तो ऐसी डिफिकल्टीज आती है, जैसे वो अपनी लाइंस भूल जाएंगे, और कभी कभी होता है कि उनको एक्टिंग करने का मन नहीं करता है. तो कभी कभी क्या है कि डायरेक्टर को अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, उनको खींचना पड़ता है. और उससे लिमिटेशन ये भी होती है कि इफ यू वांट टू मूव अ सीन, यू वांट टू मेक इट फ्लो अ सर्टेन वे, तो इन ड्रॉबैक्स की वजह से उसमें थोड़े वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. So, how much do you agree with Ram, and how do you tackle problems like this? या नॉन एक्टर के साथ, फर्स्ट टाइम एक्टर के साथ काम करना तो बहुत मुश्किल होता है. और स्तर में तो वो एक्टर ही नहीं थे, वो तो जस्ट रियल लोग थे. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिल्म में कभी काम करेंगे. बहुत चैलेंजिंग होता है. बहुत एग्री विथ राम की, बट वो जो चैलेंजिंग होता है, लेकिन एज अ डायरेक्टर मेरे लिए थोड़ा आसान था, क्योंकि वो मुझे कैरेक्टर दिख रहे थे. वो कैरेक्टर एक्चुअल थे, जो कैरेक्टर मैंने मेरे दिमाग में थे, वो एक्चुअल क्या था कि वो कैरेक्टर ऑलरेडी थे. उन्होंने वो जिंदगी जी थी, वो ऑलरेडी कैरेक्टर, मुझे बस उनसे वो इमोशन, वो रिदम सीन था, वो निकालना था. बट ये तो प्रॉब्लम होगी, वो तो प्रोफेशनल एक्टर से ही होते हैं. जो ऑलरेडी ट्रेन एक्टर उनसे भी होती है, लाइन भूल जाना, कंटिन्यूटी. ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही है. तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा प्रोसेस क्या था कि मुझे इनको एज एक्टर ट्रेन करना ही नहीं था, मुझे उनको एक्टर बनाना नहीं था, क्योंकि मुझे उनको रॉ ही रखना था. क्योंकि वो रफ एजेस होती है ना, रॉनेस वो चाहिए थी. अगर उनसे अब मैं बहुत बड़ा, अगर कुछ वर्कशॉप करता, कुछ और महीना भर का वर्कशॉप करता और उनको पूरा एक्टिंग सिखाता, तो वो स्टेज बन जाता. वो जो उनका जो रॉनेस है, या एक वो सारा चला जाता. इसलिए मैंने बेसिक वर्कशॉप किया, लाइक फॉर 7 days. मैं और माय को प्रोड्यूसर शेफाली, हम लोग गए थे, और मेरा गाँव है, तो हम हर रोज जाते थे और रीडिंग करते थे, बेसिक रीडिंग करते थे. मैं और विथ ओनली 4 बेसिकली, सविता दलोत्रा, उसका भाई और लीला भाई, हम चारों के साथ बेसिक जो कोर सीन्स है उनके साथ मैंने पूरी स्क्रिप्ट सीन बाय सीन पढ़ी, सीन उनको समझाई क्या है क्या नहीं. और बहुत बातें करते थे बेसिकली फिल्मों के बारे में. अच्छा सिनेमा क्या होता है, खराब सिनेमा क्या होता है, तुम्हारी फेवरेट फिल्म क्या है, मेरी फेवरेट फिल्म क्या है, कौन सी सीरियल देखते हो, सीरियल और सिनेमा के बीच में फर्क क्या है, कौन सी मराठी फिल्म तुम्हें याद है, तो सैराट तुम्हें क्यों अच्छी लगी, या फैनरी आपको क्यों अच्छी लगी. तो ये ना उनको बेसिकली सिनेमा के प्रति थोड़ा सा प्यार बेसिकली मैंने कोशिश की है कि, और बेसिक एक ही मेरा मोटिवेशन था कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. हम अपनी कहानी, हम आपकी कहानी, हम अपने गांव की कहानी एक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप 100% दे दो. हम
मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ 40 लोग आएंगे मुंबई से, पूरा क्रू आएगा, तो हम कुछ ये नहीं है, हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज उसको सीरियसली लेके। क्योंकि जब मैं कास्ट किया तो उनको लगा कि एक्टिंग क्या है, 2 लाइन बोल देंगे निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जब शूट शुरू हुआ तब समझ में आया कि क्या होता है। वो पक गए थे, पग में वो बेचारे थक गए थे कि क्योंकि जब हम वर्कशॉप करते थे तो बेसिकली मैंने उनको बॉडी लैंग्वेज से काम किया, कैसे बोलना है, बेसिक कैमरा टेक्निक बताई, और मैं मोबाइल फोन से अपना बता था कि ऐसा 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 होगा। लेकिन जब एक्चुअल शूट पे जो बड़ा कैमरा आया, हाँ, और पहला दिन था, आधा गांव जमा हो गया, पूरा लोग देख रहे हैं, पूरा क्रू है, तो ऑब्वियसली आप ये फील करते हो कैसे बोलूं, तो वो हो गए थे, कॉन्शियस हो गए थे, वो नहीं कर पा रहे थे। पर पहले कुछ दिन मुश्किल मुश्किल गए मेरे लिए। फिर भी वाइड एंगल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता था, लेकिन जैसे मैं क्लोज लगाता था, कैमरा उनके पास चला जाता था, वो कॉन्शियस होते थे, उनको समझ में आता कहाँ देखे, कहाँ देखना है। ये मेरे साथ तो बहुत हुआ, बट मुझे पता था कि ऐसा कुछ ने नई बात नहीं थी, ये मैं उसके लिए रेडी था। तो यही था कि उनको थोड़ा कंफर्टेबल बना के, उनको उनके साथ बात करके, जैसे सीन कुछ है, उनको लाइन भूल रहे तो मैं उनका काफी बात करता था बेसिकली। सीन के पहले ही कहाँ गया, क्या आपने क्या खाया, क्या पिया, किधर गए थे आज, क्या हुआ, अच्छा गाय को पानी पिलाया क्या, आज कितना कपास कितना हुआ। एक ऐसे ऐसे बैठे बैठे बात करते थे, एक जैसे फ्लो में आते थे, तो हम बोलते हम चलो करते हैं समथिंग ना, कि आप उनको ऐसा फील मत करो कि शूट हो रहा है, मतलब भूल जाओ कैमरा है यहाँ पे, भूल जाओ। हम जैसे आप घर पे बात करते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस उससे करो। दूसरी बात, प्रॉब्लम होती थी, कंटिन्यूटी तो होती थी, बट वो तो चलो, वो तो आप 1-2 बार इंस्टा करते थे, बट चल रहा था, आपको एडिट में भी कुछ संभालना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जब टेक होते थे ना, वो क्योंकि हर आपको हर टेक मीन्स हर शॉट सेम आपको रिपीट करना है, और टेक टेक भी कभी हो नहीं रहा है, 4 टेक 5 टेक हो रहे हैं, वो पक जाते थे जब तक। और मेरा था कि मैं थोड़ा हूँ कि जब तक मुझे मेरे मन जैसे मिलता नहीं, मैं रुकता नहीं। तो 6-7 टेक हो गए, और मेरा एक स्टाइल था, वो एक एक वर्ड सुनने को, एक मैजिक वर्ड सुनने को तरसते थे कि मैं बोलता कि वेरी नाइस। मेरा होता जब मुझे अच्छा लगता मैं बोलता वेरी नाइस। मैं जैसे माइक पे वेरी नाइस बोलता था, सब बोलते हाँ हो गया। तो ये बड़ा ये था। और जैसे लीला बाई है, लीला बाई तो जो जिन्होंने इसका मदर का रोल रोल प्ले किया, सी इज माय डिस्टेंट कजन बेसिकली। और गांव में आटे की चक्की चलाती है। तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो काम करेगी। तो वो तो जब मैं गांव में जाता था वर्कशॉप लोगों को ढूंढने, तो वो ऐसी वो आके बैठी थी, और मैंने किसी और चीज के लिए कास्ट किया था, जो शादी के वक्त गाना वाना गाते हैं अपने, वो अपना सॉरी हल्दी वाला, तो उनके लिए बोला कि आप अच्छा गाती है तो आप बोलो। लेकिन जिस टाइप की, और जब ऑडिशन कर रहे थे तो उसको मैं क्यूज देने को बोलता था कि तुम्हें कुछ करो कुछ करो, बट जिस तरह से वो कर रहे थे, मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया है, ये तो लीलाबाई कर सकती है। तो जस्ट कन्विक्शन था कि ये कर सकती है, उसने किया। बट जब शूट के वक्त ना 2-3 टेक के बाद ना, वो नहीं, बस हो गया, मेरे गिराए आए होंगे, मुझे चक्की पे जाना है, वो आएंगे, बोले चक्की भूल जाओ बैग में ना, यही है अपना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती थी। फिर वो थे कि क्या वही वही आप टेक पे टेक होते, अरे वही वही बातें, कितना है, वही 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 टेक 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 हो रहा है। मैंने बोला कि भाई ये जिंदगी है, आपने हाँ बोला। अभी आपको करना है, और हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप जब फिल्म देखोगे ना, आपको बहुत खुशी होगी। आपको लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया। और सीरियसली ऐसे हुआ जब मुंबई मामी फिल्म फेस्टिवल में जब स्क्रीनिंग थी हमारी फिल्म की, तो मैंने सारे एक्टर्स को गांव से बुलाया था, मुंबई बुलाया था। सब लोग आए थे, वो तो जो प्राइमरी 7-8 लोग हैं सबको बुलाया था। और उन्होंने पर्दे पे देखा अपने आप को, और पूरी फिल्म और लोगों का रिस्पॉन्स देखा, तो सीरियसली उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब कि तब समझ में आया कि बाप रे, हम लोग जो कर रहे थे महीना भर, ये वो कहाँ से कहाँ, ये तो अभी ऐसा दिख रहा है वो। तो उनको भी लगा कि नहीं, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। और बहुत खुश थी, तो खास तौर पे संगीता बाई तो बहुत खुश थी कि जब शूट चल रहा था तो उनके पति जो थे वो भी परेशान थे कि अरे वो बार बार तुम लोग बुला रहे हो, कर रहे हो। और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई शूट के कुछ दिनों बाद। तो उन्होंने कहा था मुझे कि तुम
मुंबई लेके जाओगे उसको? तो मैंने कहा था हाँ मुंबई लेके जाएंगे। मैंने ऐसे बोल दिया था मुंबई लेके जाएंगे। लेकिन वो पहली बार अपने फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए संगीता भाई मुंबई आई थी स्क्रीनिंग के लिए, तो उसने तब कहा कि सीरियसली मैं आज आपकी वजह से मुंबई आई। मतलब पहली बार मुंबई, बहुत सारे लोग पहली बार मुंबई उन्होंने देखी भी थी, वो मुंबई इस चक्कर में है। तो इट्स लाइक ना कि कुछ चीजें आपने भी सोची नहीं थी और आपने हंसी मजाक में एक सब लोगों ने किया, क्योंकि मैं वो मुझे जानते थे, चलो मुझे पहू कहते, पहू कह रहा है तो हम कर रहे थे। बट जब उन्होंने देखा तो वो खुद यकीन नहीं कर रहे थे कि हमने कुछ अच्छा काम किया। तो इसलिए ये फिल्म मेरी पर्सनल है, क्योंकि इसमें मेरे बहुत मेरे गांव के अपने लोग जुड़े हैं, मेरी फैमिली जुड़ी है, मैंने अपने होम टाउन में शूट की। बड़े पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए ये फिल्म बड़ी इन टर्म थोड़ी इमोशनल भी होती है जब मैं बात करता हूँ इस फिल्म के बारे में। और सबके लिए मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरे पूरे फैमिली के लिए, मेरे गाँव वालों के लिए, और ओवरऑल जो लोगों से रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए मैं सॉरी आंसर को कहाँ से कहीं और ले गया, बढ़िया। नहीं नहीं, वंडरफुल। मुझे ऐसे बड़े आंसर्स पसंद है, पता है राम भी ऐसे अपोलोजाइज कर रहे थे जब हम कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे बड़े आंसर्स बड़े अच्छे लगते हैं, दिस इज क्वाइट गुड। और काफी बिटर स्वीट भी था, एंड में काफी बिटर स्वीट हुआ, तो वो तो हाँ हाँ, काफी फिल्म वही है, फिल्म भी वही हो जाती है करते करते। और वही है कि अपने से इमोशन ना, हम तो मेरा तो वही है कि आप हंसाओ या रुलाओ, बट बस फिल्म यहाँ टच होनी चाहिए बेसिकली। आप हंसते हुए भी आपके आंखों से आंसू आते हैं, और ये होता है तो वो टच होना चाहिए। तो वो है, तो वही एक्टर्स मैंने दो तीन एग्जांपल दिए, बट वही था बहुत अगर इन शॉर्ट बताना हो तो प्रॉब्लम होती है नॉन एक्टर काम करने में, बट जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, जो रियल एक परफॉर्मेंसेस मिलता है, लिव्ड इन परफॉर्मेंस, जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्टेड नहीं था कोई, वो सारा लिव इन था बेसिकली। उन्होंने वो जिंदगी जी थी, वो आपको पर्दे पे दिख रही थी। इसलिए जब बहुत लोग बोलते हैं, जब फिल्म देखते हैं, उनको लगता है कि हम उस गांव में चले गए हैं, हम उस लगता है कि हम वहां बैठे हुए, उस बैठक में बैठे हुए हैं, और हम वहां पे है सविता के घर पे। तो एक जो रियलिज्म होता है फिल्म में, बिकॉज क्योंकि वो रियल लोकेशन है, रियल लोग है, और रियल भाषा है, इसलिए बहुत लोग ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वहां पे। लगता है कि बहुत सारे जिन्होंने के गांव नहीं दिए, हम बोलते कि हमने तो आपके फिल्म के जरिए गांव देखा, हम वहां इस गांव में पहुंच गए थे, हम डोंगर गांव में पहुंच गए थे, हम सविता के घर में थे। तो ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज उन लोगों की वजह से, है ना। वंडरफुल। और ये इसका काफी परफेक्ट एग्जांपल है दैट हाउ मूवीज ट्रांसपोर्ट यू टू द अदर वर्ल्ड, तो काफी ये भी है, सो दिस इज वंडरफुल। So moving on, what I found in a movie was, there was, correct me if I'm wrong, but I found that there was a criticism of Bollywood and how the mainstream Bollywood, it uses a song and dance and all that broad romantic beats to, paint a pretty picture of marriage, but in reality, the marriage is such ugly as you can see in the film and in real life also. So what I wanted to know that where you it was your intention to was it your intention to criticize these Bollywood movies, and do you think that art has a influence on life, a major influence on life? और ऑनेस्टली मैं आंसर दूं, बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करना तो नो। Whole Bollywood, but those बट mainstream हाँ movies. हाँ, बट या द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मैरिजेस, या वो होता है कि हम अक्सर कहते हैं ना कि दे से कि वो क्या लाइन है कि मेड इन हेवन, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। बट नहीं, वो नहीं होता उस टाइप का। टू फॉर दैट समवन हैज टू गो थ्रू हेल। Good one, good one. Very good. इतना आसान नहीं होता है शादी। और हमने हमारे मेन स्ट्रीम में, मैंने क्या हिंदी या बाकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात कर रहा हूँ, हमने हमेशा इसको कभी ग्लोरीफाई किया है। हमने इसके वजह से ही एक सोसाइटल प्रेशर आ गया है ऑन मिडिल, ऑन क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास पे जो है, उन पे सोसाइटल प्रेशर आ गया कि यार शादियों में ऐसा होता है, शादियों में ये करना चाहिए, शादियों में इतना खर्चा, क्योंकि आपने वो ग्रैंडनेस, वो ग्लैमर देखा है। तो अगर आप देखो आजकल शादियों का इतना बड़ा मार्केट है, वो तो इतना बड़ा, बोलते इवन स्मॉल टाउन में भी अगर लोग लोन तक लेते हैं, लोग उधार लेते हैं अपने जस्ट टू वो सब करने के लिए,
कि क्योंकि प्रेशर होता है कि यार उसकी शादी में ये था, हम अपनी शादी में करें, लोग क्या कहेंगे, होता है ना, लोग क्या कहेंगे, अरे हमने तो वो बस इसको हमने वो नहीं खिलाया, हमने वो नहीं किया, हमने वो गिफ्ट नहीं दिए, हमने रिटर्न गिफ्ट, आजकल स्मॉल फार्म छोटे छोटे गांव में भी रिटर्न गिफ्ट का कल्चर शुरू हो गया है। रिटर्न की गिफ्ट, तो ये जो प्रेशर है ना कि ये हमने काफी ग्लोरीफाई किया है, हमने किसी उसको दिखाने की कोशिश नहीं की। तो मेरा अगेन इट केम वेरी ऑर्गेनिकली टू मी, बट ये एक था एक प्रयास कि नहीं, जो हम कहते हैं इतना आसान नहीं होता एक बेटी की किस, अगर खास तौर पे एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी की शादी या किसान के बेटी की शादी इतनी आसान नहीं है। किसान के लिए अपने बेटी की शादी सॉरी बेटी के लिए लड़का ढूंढना उतना ही डिफिकल्ट है जितना उसके कपास को भाव मिलना। तो दैट्स व्हाई आई यूज दैट मेटाफर, कॉटन एंड गर्ल। ना उसके कपास को भाव मिल रहा है, उसके कॉटन को रेट मिल रहा है ठीक से, ना उसके बेटी को ये हो रहा है। तो ये क्रिटिज्म, आप क्रिटिज्म या कह सकते हैं कि मैंने दिखाने की कोशिश की। मुझे याद है कि स्टुटगार्ट फिल्म फेस्टिवल में वी गॉट बेस्ट फिल्म अवार्ड, और तब अंबानी की शादी का बहुत कुछ चल रहा था, होल मीडिया वाज ऑब्सेस्ड विद अंबानी वेडिंग। और तो मैंने मेरे स्पीच में वही कहा था कि होल मीडिया इज शोइंग हाउ द ग्रेट इंडियन वेडिंग जो भी होता है बड़ी, बट माय फिल्म ट्राइंग टू शो यू द रियल वेडिंग क्या होती है ना, इंडियन वेडिंग जो होती है, जो इन लोगों की। तो खैर, तो मैंने वो कोशिश तो की है, बट अगेन क्योंकि वो बैकड्रॉप ही फिल्म का ऐसा था, एक किसान की बैकड्रॉप था, वो सारी चीजें आई। और जो फिल्म के गाने की बात है, यहाँ पे बड़े ऑनेस्ट आंसर देना चाहूंगा कि दैट इज वो मेरा यू कैन से, मैं 80s 90s के गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप भी है शायद। सेम सेम सेम। तो वो और मैं मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार इनके गाने बहुत ही सुनता हूँ। तो मुझे और एसपी बालासुब्रमण्यम, तो मुझे वो एक एक नॉस्टैल्जिया कह सकते हो, मुझे वो यूज करना था। और अभी भी स्मॉल टाउन में वो सारे जो पान टपरी जो इसमें होते हैं, वो वाले जो 90 से गाने ना अभी भी चलते हैं, तो वो भी था, तो इसलिए मैंने वो यूज किए। लेकिन हाँ, बट जैसे आपने कहा कि वो अनकॉन्शियसली आई थिंक हम जो रोमांस या इसको हम फिल्मों में ग्लैमराइज करते या ये करता जहाँ लाइव दिखाने के, वो भी आ गया उस गाने के थ्रू। आपने बहुत, मैंने जब पढ़ा था बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको जोड़ा। अगेन अगेन मैं कह रहा हूं, मैंने इतना नहीं सोचा था। काफी अनइंटेंशनली आपने ग्रेट मूवी बना दी, मुझे लग रहा है। हाँ, पता नहीं बन गई। सब कुछ और होता है, हाँ सब कुछ मैजिक हो जाता है कभी कभी। अगर आप ऑनेस्टली आप अपनी कहानी बताने की कोशिश करो ना, आप विदाउट एनी ये, आप ऑनेस्टली अपनी कहानी बताओ, अपने रीजन की कहानी बताओ, अपने आप जिस दुनिया को जानते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करो, आई थिंक आप लोगों तक वो ईमानदारी पहुंचती है, लोगों तक वो फिल्म छूती है। या नॉट जस्ट वेडिंग, ऑल्सो हार्ट ब्रेक भी हमारा देखा जाए तो मूवी से डिराइव कर गया था। जैसे उसका जब हम्म, भाई भाई जब वो दारू पी के कर रहा था, वो रहना है तेरे दिल में का वो गाना बज रहा होता है, तो इट वाज लाइक उसने वो देवदास और ये ऐसी मूवीज देख के अब वो उनको इम्बाइब कर रहा है दारू पी के। हाँ देखो ऐसे, तो वो भी मुझे लगा वो भी वहां से अपने वहां वहां वो से। है, और वो हम देखते आए हुए हैं वो अगेन, क्योंकि हमारे सुख दुख, सुख और दुख या हमारे फिल्मों से जुड़े हुए हैं। हमारे शादी त्योहारों में, दिवाली या फिर शादियों में, सारे हम फिल्मों पे गाने पे डांस करते हैं। हम तो अपना गाना तो क्रिएट नहीं करते ना, हम तो तो अगर शादी, महाराष्ट्र में शादी हो रही है तो झिंगाड़ बजता है। तो गणपति में देवा श्री गणेशा बजता है। तो वो कल्चर है, वो जिंदगी है। अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो वही सुनता है। ये अगेन वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम माय दोस्तों का। तो वही होता है। आप तो सच कह रहा, दीवाना बनेगा बजेगा या अच्छा सिला दिया तूने मेरे पार प्यार का। तो ये है, तो दैट इज रियलिटी, दैट इज रियलिटी।
फिल्मों में बस हीरो अपना गाना बनाते हैं, हमारे या सॉरी, मैं इसे कोई No, बकवास no, I'm actually enjoying this. And you know, uh, जैसे हमने कहा अभी, जैसे मूवी से सब डिराइव करके रखा है, तो we are taking our inspirations from all the wrong things, because take that scene where that little girl, वो सावित्री बाई फुले का वो स्पीच दे रही होती है, और जैसे वो रोबोटिक जैसे बोली थी, इसमें रट्टा मार के एकदम पूरा राइट बोल राइट। रही है, और उस सीन में एकदम मतलब पहले आप उसको दिखाते हैं कि आप वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप कट करते हैं उसके ऑडियंस पे, छोटी बच्चियां उसको देख रही होती है, और इम्प्लीकेशन वही आता है कि ये बड़ों के सावित्री बाई फुले वाला मे भी उस बात पे ना जाए, जैसे सविता के साथ हो रहा है उनके साथ भी यही होगा। मतलब हमने जो ग्रेट जो लोग है सावित्री बाई जैसे, हमने बस उनको ऐसे रट्टा मार लिया, उन्होंने ये किया, लेकिन उन्होंने जो किया उसको हमने समझा नहीं है, और ना हमने उसको किसी को समझाया है, तो लाइफ हमारी वैसी जा रही है। मुझे लगा आप उस सीन से वो दिखाना चाहते हैं, मतलब उसके बिल्कुल तो या बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, क्योंकि हमने, जैसे आपने सही आपने आंसर दिया कि वही है कि हम बस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, सावित्री बाई फुले हो, शिवाजी हो, बस हम उनके फोटो लगा के या उनके बारे में बात करके हम एक टोकनिज्म ही करते आए हुए हैं। बट उन्होंने क्या कहा, क्या उनके विचार थे, वो कभी असल जिंदगी में नहीं लाते, और इसलिए से बातें होती है। इसलिए वही है कि आप सावित्री बाई फुले जयंती है, अम्बेडकर जयंती है, हम उसके बारे में भाषण देंगे, बट तभी आप उसके विपरीत उसके कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन कर रहे हैं। तो इसलिए वो सीन मेरे लिए कि बचपन वही है कि बच्चों को क्या पता, बच्चे को तो आपने पढ़वा लिया ये ये बड़े, वो बेचारी सावित्री बाई फुले बन के बड़ी इनोसेंट। तो वही बोला कि हम छोटे होते तो सवाल नहीं पूछते। अगर तो मेरा भी जो ऑब्जर्वेशन है, अगर मैंने एक बात आप शायद बताया कि नहीं बताया, कि जो बच्चा आता है ना बैठक में, छोटा बच्चा पानी का ट्रे लेके आता है, वो बेसिकली मैं हूँ। वो तो मैंने भी बहुत सारे बैठक में पानी पिलाया, तो ये मैंने यहाँ तक देखा। तो वो ये कि तब मैंने ये सब देखा था, ये सब सब सवाल होता है, बट आप तब सवाल नहीं पूछते। तो सेम विद दैट किड, सावित्री बाई फुले बन के वो भाषण दे रही है, बट उसको नहीं पता कि हो सकता है कल अब बड़ी होके ये मैं बातें कर रही हूँ कितनी सच होगी, साबित होगी, या क्या होगा समाज में। तो वही है, बड़े बड़े विचार सुविचार, अगेन सेम गोज विद खापने प्रोफेसर, ही टॉक्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, और बट उसके करेज नहीं है उसके पास कि जो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए, वो बोल भी पाए। वो उसमें विलन नहीं है कि खापने, इसमें लेकिन सिस्टम विलन है कि वो उसकी कंडीशनिंग वैसी हुई है कि मेरे पेरेंट्स जो बोलेंगे जो भी है, उसने पढ़ा लिखा, बट वो किताबी ज्ञान था, उसने एक्चुअल रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर रहा है बेसिकली, और वो किसी प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में वो भी है basically। एक वो लाइन भी है ना उसमें कि वो कहते हैं कि वो इसलिए ऐसे प्रोग्रेसिव है क्योंकि ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है। सो क्योंकि वो हमें पढ़ा रहा है वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में, से वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के मतलब वैसे वो और एक मिनट सॉरी। श्योर श्योर। सॉरी, सडनली वो वहां से वॉल्यूम बढ़ गया था, तो मैं सुनाई नहीं दे रहा था कुछ। इट्स फाइन इट्स फाइन। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप जो बोले, जैसे उसमें लाइन भी है मूवी में कि वो कहती है, वो अपने दोस्त को बताती है सविता कि वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करे क्योंकि ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो पढ़ा रहे हैं। सो खापने वो कॉलेज की टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं और बाकी सब वो सोसाइटी वाली टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, तो सब बस रटा रटाया ही पूरा बता रहे हैं, तो वो चल रहा है या। तो मुझे वो एंडिंग के बारे में बात करनी थी, बिकॉज आई लव दैट एंडिंग, क्योंकि एंड में क्या होता है कि अब मैटर नहीं करता कि सामने कौन बैठा है क्या बैठा है, सवाल तो वैसे ही सेम आ रहे हैं, एक ही चल रहा है। तो आप क्या करते हैं, यू डोंट शो हु इज सिटिंग देयर, ब्लर हो जाते हैं, हम बस सविता को देखते हैं। एंड देन व्हाट यू डू कि वो एंड में वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उठ के आती है और एक स्लैप करते हो, मतलब कैमरा मतलब देखा जाए कि मतलब वो हम ही रहते हैं, मतलब वो हमारे व्यू पॉइंट से जाके इन द सेंस वो हमें स्लैप कर, या फिर उनको जो ऐसे बिलीफ को फॉलो करते हैं। सो आई वांटेड टू नो कि ऐसे आपको स्टार्टिंग से पता था कि मुझे मूवी ऐसी एंडिंग करनी है, विजुअली आई एम टॉकिंग, कि ऐसे वे में, या आप शूटिंग के दौरान आप लोग ठीक है ऐसे कर सकते हैं, सो हाउ डिड दैट? या ये तो बड़ा स्पॉइलर होगा।
स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। हाँ, क्योंकि हाँ स्पॉइलर अलर्ट है, क्योंकि आपने जो बता दिया अभी, जो पूरा सीन डिस्क्राइब किया, स्पॉइलर है। सो चलिए, अभी आप पूछ रहे तो बताता हूँ, फिर आप वहाँ पे स्पॉइलर डाल दीजिएगा। कि ये लिखते वक्त ही था, दैट वाज द ओनली एंड आई थॉट अबाउट। कोई दूसरा एंड नहीं था मेरे दिमाग में। हालांकि और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी ऐसे सोचा गया था, क्योंकि जैसे आपने भी इसको इंटरप्रेट किया है कि दैट स्लैब इज ऑन अस, ऑन द सोसाइटी। तो वहां पे कोई कैरेक्टर दिखाना, उनके चेहरे दिखाना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है हम में से, सोसाइटी, द होल सोसाइटी। वो जो चार लोग बैठे, दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्जर सोसाइटी। इसलिए वो चेहरे भी आउट ऑफ फोकस है, क्योंकि वहां पे कोई एक चेहरा, फेस इंपॉर्टेंट नहीं था। तो वो दैट वाज थॉट अबाउट कि ऐसे ही होगा। और जैसे हम एडिट के वक्त भी सोच रहे थे कि बहुत लोग, आपने भी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, देखा है कि बहुत मेरे एडिटर को लग रहा था कि वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा था, शूट करके आया था, तो हुआ कि यार वो थोड़ा एड फैनरी जैसा लग रहा है, फैनरी फिल्म की जैसा। सो तो उसको कि हम कुछ और करें, लेकिन नहीं हो सकता है लगा कि, लेकिन वो उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे सविता की जर्नी नहीं चेंज हो रही है। दैट इज जस्ट क्या बोलते हैं आप, एक मेटाफर बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि तो मैं जब बता रहा हूँ जैसे इसमें कि ऐसा, बट हाँ ये एंड पहले से वैसे था कि मैं और ना उसमें कोई दो तीन लोगों ने बोलने के बावजूद मैंने सोचा नहीं, बट वो एंड वैसे था और वैसे ही ट्रीट करने का उसको हमने सोचा था। यहाँ छोटा सा मुझे डाउट डाउट नहीं इन द सेंस, क्योंकि देखो मूवी ओपन्स विद अ ड्रीम सीक्वेंस, और जब वो एंड जो होता है थोड़ा मतलब मुझे ड्रीम लाइक लग रहा था मुझे, जैसे वो सोच रहे कि जाके मार रहे और एक्चुअली में बैठ, मतलब इट डिड इट एक्चुअली हैपन या वो ड्रीम था? तो मुझे क्योंकि थोड़ा ड्रीम वाली फीलिंग आ रही थी इसमें, इसलिए मैं जानना हाँ, चाहता ये बड़ा ओपन टू इंटरप्रेटेबल वाला सिचुएशन है। तो ये बहुत लोग था। मुझे पूछते हैं, तो मैं लोगों को पूछता आपको क्या लगा। तो ओके। तो ये, बट अगर मुझे पूछा जाए तो मेरे लिए वो दैट इज रियल, दैट इज रियल। अगर मैं एज अ फिल्म मेकर, माई दैट इज माई स्टेटमेंट, फिल्म मेकर स्टेटमेंट। बट इट इट इज ओपन टू इंटरप्रेट। बहुत लोगों को ड्रीम सा लगता है, बहुत लोगों को रियल लगता है। और जो बहुत ज्यादा, बहुत लोग फिल्म देखते वक्त जोश में आते हैं, उनको लगता है कि कुछ कर, उनको लगता है कि नहीं ये रियली है, वो रियली होना चाहिए, क्योंकि वो उस हद तक उस फिल्म में घुस जाते हैं सविता की जिंदगी के साथ। तो उनको लगता है नहीं अब तो कुछ कर या कुछ करेगी, क्योंकि पानी यहाँ तक आ गया। तो बोलते हैं कि नहीं, जैसे मैंने हम एक थिएट्रिकल स्क्रीनिंग में बहुत आम लोगों के साथ में बात की, महाराष्ट्र के कुछ, तो वो तो बोल रहे थे नहीं नहीं एक क्यों मारा, और दो तीन मार रहे थे, उस टाइप का, उस यहाँ तक वो पहुंच गए थे। तो या फॉर मी इज रियल। मेरे लिए भी रियल है, और उतना इंटेंसली रियल है जितना आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि जाके 3-4 मार देना था। मेरा भी, मैं उन्हीं क्राउड में आता हूँ, मुझे लगता है मारो यार, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एंड okay, so we have come to the end. So before saying goodbye to you, मैं जानना चाहता हूँ, have you started working on your next film? क्या कुछ ऐसा दिमाग में कुछ आया है? Are you या starting? आई हैव ऑलरेडी Yeah. स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय नेक्स्ट, दो फिल्में हैं। लेट्स सी क्या आपको पता है बहुत टाइम लगता है इस फिल्म मेकिंग में। तो अभी मैं कुछ कब क्या कौन सी फिल्म फ्लोर पे जाएगी अब पता नहीं, बट हाँ है कुछ पाइपलाइन में है, होपफुली जल्दी आ And जाए। या I can expect to talk to you soon. मतलब आपसे जल्दी बात करने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल I hope. बिल्कुल बिल्कुल। I really want to talk to you. काफी मजा आता है। Thank you, Jen, finally for this interview and for making this film, and it's available on Z5 for anyone watching. एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको, मैं काफी एकदम सविता की जो जर्नी थी काफी मुझे पर्सनल लगी। आई मीन आई एम अ मेल, शी इज अ फीमेल, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट्स पर्सनल फॉर मी इन द सेंस, क्योंकि मैं भी ये शादी वाले जो कन्वर्सेशन होते हैं ना, मतलब काफी एकदम ऑप्रेसिव एकदम लगते हैं मुझे। मतलब देखा जाए कि ये एज होगी है, करो करो, तो मतलब यही सुन सुन के एकदम मुझे भी काफी ऐसे फ्रस्ट्रेशन होती है। तो
I could recognize with Savita's frustration, and thank you for giving voice to my frustration, I can say. Thank you for making this wonderful movie, and yeah, thanks. Thanks. थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू सो मच. आपको फिल्म अच्छी लगी? आई एम ग्लैड यू लाइक द फिल्म एंड यू रेजोनेटेड विद द फिल्म. और बहुत अच्छा लगा. बस जो मैं सोच रहा था, जो मेरे अंदर भी थे, और आपने आप उस इमोशन को या उसको पकड़ पाए या समझ पाए, तो बहुत अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच. और हम जल्दी Thank you. और बात करेंगे. Sure. Thank या you. Bye. ऑल द बेस्ट. या थैंक यू.